Good evening, Jai Hind. Good evening, student. And once again, I welcome you on the filler form A. Good evening, everybody. Good evening. And student, I hope I would like to ask you. I think you have been appeared in the UGC NET examinations. So, बताइए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? Have you? Okay, yes. Once again, good evening. चलिए, तो without getting delay, let us start the class. ठीक है? और स्टूडेंट, I would like to tell you कि योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड इन जून, है ना? तो जून में जो अगली एग्जाम है उसको हमारा टारगेट है, और वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द सिलेबस वेरी फास्टली, ठीक है, सो दैट वी कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन ऑल द सिलेबस, एंड वी विल हैव मोर एंड मोर एमसीक्यूज आल्सो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग करें और सिलेबस को रिवाइज कर सकें. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एंड टेल मी स्टूडेंट, कितने लोग अपीयर हुए थे और किसी का रिजल्ट अभी कैसा क्या आया, क्या है, बताइए. So I think without getting delay, once again, formally let me once again welcome you and all the students. My voice, audio, video, everything is clear. Screen, is it visible? Everything, video, everything is clear. Yes or no, student? Tell me, सब कुछ सही है, आवाज आ रही है, everything is fine. Once again, confirm me, and then we will move ahead. Yes. Hello. My voice is clear. Yes or no, student? Tell me. So as I told you, student, we are in the our filler farm A is on the different platform. Okay. So Instagram, WhatsApp, and Telegram, you can join us, and these are our courses. You can purchase, you can share among your friends. Okay. Paper 1, paper 2 for 6 months, and paper 1 and paper 2 join. You can purchase for 12 months also. These are our courses, and you will get notes, previous year question papers, and as well as mock test will provide you. Okay, na? And if anybody wants to purchase our course, and if you want to, if your friend, anybody, any new student want to join our course, and then they will get 10% off by using my code DISENG10. These are my code, and you can use this code, you can share. And this is briefly this is my brief introduction, student. You can see, you can go through my introduction. And once again, everybody, once again, good evening student. And I, without getting delay, कल के बारे में बताऊं. आई वुड लाइक टू टेल यू, कल जो है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा था सडनली, तो उसका टेक्निकल इश्यू होने की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई. ओके, आई एम सॉरी, है ना, फॉर यस्टरडेज. और वो अनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, फिर सर को बोलना पड़ा. ओके स्टूडेंट, सो आई होप नाउ स्लाइड एवरीथिंग इज फाइन, है ना, स्क्रीन आल्सो विजिबल, एवरीथिंग इज फाइन, यस आर नो? ठीक है, चलिए. तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करें. हमने प्रीवियस ईयर की क्लास में जो डिस्कस किया है, विद इन 2-3 मिनट्स लेट अस रिवाइज एंड देन वी विल मूव अहेड. स्टूडेंट,
In previous class, we have discussed about old and middle English. Okay, you know, introduction to Anglo-Saxon period. We have discussed about it, and then we have discussed about as we have seen that 16th century Christianity was re-established in England, and we have seen that there was a King Alfred the Great who has declared himself a king of the Anglo-Saxons. ठीक है, Anglo-Saxons और Jutes जो है स्कैंडिनेवियाई जो देश है, नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई है ना, वहां से जो है आकर वहां इंग्लैंड में बसे थे और बाद में वहीं के होकर रह गए। क्लियर है? तो ये हमको देखना है, और ये तब तक इनका एंग्लो सेक्शन का पीरियड रहा जब तक नॉर्मन ने फिर से जो है, नॉर्मन ने क्या है इंग्लैंड के ऊपर अधिकार नहीं कर लिया, नॉर्मन कन्क्वेस्ट। और ये जरूर डेट याद रखना स्टूडेंट, पूछा जा सकता है सिंपली क्वेश्चन, नॉर्मन कन्क्वेस्ट है ना, व्हेन इट वाज अकर्ड, कब हुआ? तो इट वाज अकर्ड इन 1066 में। ठीक है, हेड्रियंस की वाल है, नॉर्मन्स है ना, ये जो है इंग्लैंड की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बारे में आपको जानना है स्टूडेंट। ठीक है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है यहाँ पर, आप इनके बारे में जाने, है ना, हमने पढ़ा है थोड़ा सा हिस्टोरी, जो हिस्ट्री है इसके बारे में आप जान सकते हैं। और जो ये नॉर्मन्स कौन है ये मैंने बताया था आपको, ये जर्मनिक ट्राइब्स हैं, है ना, जर्मनिक ट्राइब्स है। ठीक है ना, स्कैंडिनेवियाई है ना जो देश है वहां से आए थे। उसके बाद में हमने देखा है कि किस तरीके से जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है, और इसी पीरियड में ओल्ड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में कुछ वर्क लिखे गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। द एक्स्टर बुक उसमें बहुत फेमस है, द वाइफ्स लेमेंट, बियोवुल्फ है ना, द सी फेरर है, द वंडरर है, कैडमियंस की हाइम है, बेडेस डेथ सॉन्ग है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, याद रखना है। बाद में आता है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद में जब नॉर्मन ने इंग्लैंड के ऊपर अधिकार कर लिया, तो जो है वो बाद में एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाता वहां से। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो है जब द नॉर्मन कन्क्वेस्ट जब होता है उसके बाद में जो है नॉर्मन जो चूंकि फ्रेंच या नॉर्मेंडी से आते हैं, तो ये क्या है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आते हैं, और जो वहाँ की ओल्ड इंग्लिश, जो वहाँ की लोकल जो इंग्लिश थी उसके ऊपर नॉर्मन फ्रेंच को इम्प्लीमेंट करते हैं, और धीरे धीरे इंग्लिश और फ्रेंच का मिक्सअप होना शुरू कर देता है। नॉर्मन कन्क्वेस्ट का प्रभाव ये रहता है कि बहुत सारे फ्रेंच के जो वर्ड है वो आपके इंग्लिश में मिक्स होके यूज होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स है जो वास्तव में वहां पर निवास कर रहे थे, वो जो है फ्रांस की लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, द डोमिनेंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच, ये नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे द एमरजेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बाद में लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन डोमिनेंस होने के बावजूद भी क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का जो है वहाँ पीरियड शुरू होता है। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल और वर्क्स ऑफ जोफ्री मनमाउथ ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं। ठीक है, नोटेबल वर्क्स ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये आपको देखना है, कुछ वर्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं, रीड इट, है ना। तो ये जो नॉर्मन इपिक यहाँ पर लिखा गया है, द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, द नॉर्मन फ्रेंच इपिक में द सॉन्ग ऑफ द सीड। ठीक है, ये कुछ वर्क्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें कुछ लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ना, जिसमें जॉफ्री ऑफ मनमाउथ, विलियम ऑफ माल्सबरी और वाल्टर मेप का नाम आता है। इनको आप पढ़े। द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच, उसका बहुत सारे फ्रेंच जो लिटरेचर है, फ्रेंच जो वर्ड्स है उनको एक्सेप्ट किया गया। नॉर्मन्स कौन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये क्या स्कैंडिनेविया जो डेनमार्क नॉर्वे आइलैंड है वहां से आए थे। ठीक है स्टूडेंट, कई बार हिस्ट्री आपकी क्लियर है तो फिर जो है आपको क्लियर होता है। दे वर द सेम, आप देखिए ये पढ़ना आपने। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली जो है जब नॉर्मन्स आ जाते हैं तो जो एंग्लो सेक्शन पीरियड का एंड हो जाता है, और 3 मेजर चेंजेस, यानी नॉर्मन्स के आने बाद में 3 मेजर चेंज आते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये देखिए, इट वाज द एंड ऑफ द एंग्लो सेक्शन मोनार्की और द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ब्रॉट 3 चेंजेस। क्या क्या चेंज हैं? तो उसमें आप पहला चेंज पाएंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सारे चेंजेस जो होते हैं, फ्यूडल सिस्टम जो था उसको लेकर के परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और बाद में
फ्यूडल सिस्टम का मतलब जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, यानी जो जमीन है वो राजा की हो गई है, राजा ने सारी जमीन को अपनी डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर विलियम्स ऑफ नॉर्मेंडी क्या करा, क्लेम्ड द लैंड्स ऑफ इंग्लैंड एज हीज पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी। वही जो चीज है उन्होंने भारत में भी इंप्लीमेंट करी थी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में ये बड़े प्रभाव है, आपको इनको देखना है स्टूडेंट, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन अंततः जब नॉर्मन्स आते हैं तो क्या होता है, कल्चरल चेंज होता है दूसरा। उसमें कल्चरल चेंज में पहला चेंज है द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। पहले, इससे पहले इंग्लैंड की कोई आइडेंटिटी एक इंग्लैंड के रूप में, ब्रिटेन के रूप में नहीं थी। लेकिन जब नॉर्मन्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि एक नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं, दे मेड देयर ओन आइडेंटिटी, है ना। दे हैव देयर ओन, यू कैन से दे क्रिएटेड अटैचमेंट दैट वी, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर मदरलैंड, लाइक दैट, ठीक है। फिर ये हमने सारी चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट, यू कैन रिवाइज इट। और द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स जो थे, है ना, यहाँ पर जो है कुछ वर्क्स भी हैं, वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कौन कौन से वर्क्स हैं ये ध्यान रखना है। इसमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड विच स्पेंड्स बिटवीन वन, देखिए कब कितना टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना है। एंग्लो 1066 एडी से लगा के 1350 तक का जो पीरियड है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर कुछ जो वर्क है इनके एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स में, फर्स्ट वर्क इज हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, है ना। इसका द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ब्रिटेन, द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ब्रिटेन, जॉफ्री मॉनमाउथ का ये वर्क है। तो ये 5 वर्क जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें एक तो ब्रूट है, लेमेंट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, है ना, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। फिर अगला है द ओल एंड द नाइटिंगेल, दीज आर द मेजर वर्क्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और उसके बाद में हम बात करें द पर्ल, है ना, ये पर्ल पोएट भी बहुत फेमस स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया है, इसको जरूर आप रिवीजन करें स्टूडेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत मेहनत से मैंने ये बनाने का प्रयास किया। राइट डाउन इट इन योर ओन नोट्स, राइट डाउन इट इन योर ओन नोट्स विद योर ओन हैंड्स, अपने हाथ से इसको लिखे, गॉट इट, एक मोटे मोटे रूप में। और आजकल जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो इसके बाद ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमको इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना है, लेकिन चूंकि हिस्ट्री और उसकी जो पॉलिटिकल रिलीजियस एस्पेक्ट को हम उस पर्टिकुलर एरा में जानते हैं, तो क्योंकि जो राइटर होता है उस पर्टिकुलर एरा के बारे में, उस समय जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखता है, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, इट इज सेड लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, सो वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर एरा, व्हाट इट स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर, इसी को एंग्लो सेक्शन पीरियड कहते हैं, 450 से 1066 एडी तक है। फिर मिडिल इंग्लिश 1066 से 1500 तक का आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आपका द एंग्लो नॉर्मन पीरियड है 1066 से लगा के 1340 तक है। इसी बीच में आप ये मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश के 3 भाग है स्टूडेंट, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, मिडिल इंग्लिश के आप देखेंगे, ठीक है ना, 3 भाग है। 1 द एज ऑफ चॉसर, अभी आज हम करने वाले हैं 1340 से 1400। द एज ऑफ रिवाइवल, क्लियर है, द एज ऑफ रिवाइवल आपको ध्यान रखना है। रेनेसा पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अर्ली एलिजाबेथन एज, रेनेसा पीरियड 1500 से 1660, है ना, 1500 से 1660 तक अर्ली एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, या इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज को। जिस पर्टिकुलर एज में जिस राइटर का प्रभुत्व रहा, दबाव रहा है, उस एज को उस पर्टिकुलर राइटर के नाम से जाना जाता है। द डोमिनेंस राइटर, है ना, द डोमिनेंस राइटर हु हैज रिटन लॉट ऑफ वर्क्स, है ना, हु इज वेल नोन राइटर हु हैज रिटन लॉट ऑफ वर्क्स, सो पर्टिकुलर एज इज, यू कैन से, especially known by the particular writer. Jacobean age, we will discuss about Jacobean age 1603 to 1625, and it is also called the age of John Donne, the metaphysical poet, age of John Donne, metaphysical poet. Then there is a Caroline age, which is from 1625 to 1649. It is also called the age of Milton. Commonwealth period
1649 टू 1660 प्यूरिटन एज। अब देखिए ये दोनों जो एज है ना, आप देखेंगे इसको जो है, इन दोनों एज को जो है प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। यू रिमेंबर द न्यू क्लासिकल पीरियड। देखिए यहाँ पर न्यू क्लासिकल पीरियड, इसका मतलब एक क्लासिकल पीरियड भी है। ये क्लासिकल पीरियड 450 से पहले जाना पड़ेगा, हम उतना अभी डीप में नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे। द रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700, इसी को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं, है ना। रेस्टोरेशन पीरियड, द न्यू क्लासिकल पीरियड में ही कुछ सब पीरियड आते हैं स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। द रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, एज ऑफ जॉन ड्राइडन या रेस्टोरेशन पीरियड। फिर द अगस्टन एज है स्टूडेंट, 1700 टू 1745, एज ऑफ पॉप के नाम से जानी जाती है, एज ऑफ पॉप। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या द एज ऑफ जॉनसन, ये देखिए न्यू क्लासिकल में 3 एज है, द एज ऑफ रेस्टोरेशन, अगस्टन एज या एज ऑफ पॉप। इसको बिल्कुल आप लिख लें बहुत अच्छे से, ठीक है। और एज ऑफ जॉनसन 1745 टू 1798, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर द रोमांटिक पीरियड 1798 टू 1837, द विक्टोरियन पीरियड, और इसी में द प्री राफेलाइट, है ना, ये आप देख सकते हैं। और फिर द मॉडर्न पीरियड है, और द एडवर्डियन पीरियड और द जॉर्जियन पीरियड इसमें आता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप दिस क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड। चलिए, तो वंस अगेन यू कैन गो थ्रू द, देखिए सबसे अच्छी बात है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लेक्चर। चलिए, चलिए स्टूडेंट, ठीक है, बड़े आगे। अब देखिए वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग हमारी जो 4 यूनिट है उसको कंबाइन कवर कर रहे हैं। यानी जैसे ड्रामा, है ना, यहां पर आप देखेंगे ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शनल प्रोज। तो यानी ब्रिटिश लिटरेचर में जिसने भी ड्रामा लिखा उसको हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश लिटरेचर में जो पोएट है पोएट्री उसको पढ़ेंगे, जो फिक्शन है उसको पढ़ेंगे, और नॉन फिक्शनल प्रोज है। फिर अमेरिकन लिटरेचर में जाएंगे तो फिर वहां पर ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, यानी ऑल हम कवर करेंगे। कुछ राइटर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्रामा भी लिखा है, पोएट्री भी लिखी है, ठीक है, नॉन फिक्शनल प्रोज भी लिखा है। तो हमको साथ में कवर करने में हमारा जो एडवांटेज ये है कि हमको बार बार किसी राइटर को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट स्टूडेंट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और ये सबसे बड़ी यूनिट है, मेजर यूनिट से है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। This is the best way to study. Now let us go ahead. So let us discuss one of the most popular age, that is age of Chaucer, and it is, you know, you can again. So we will discuss in this module age of Chaucer, political, social, economical, religious condition of the particular age. Okay, student, है ना, ये हम चर्चा करने वाले हैं। So once again let me remind you student, as we have studied the old English, the middle English period, and देखिए the age of Chaucer was an age of transition, that brought many changes in political, economic, social, religious condition during the 14th century, are the age of Chaucer student. ट्रांजिशन पीरियड है स्टूडेंट, ये एज ऑफ चॉसर को ट्रांजिशन पीरियड कहा जा रहा है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब ये है कि एक तरफ आप चलो जो अभी तक चला आ रहा है ना, एक तरफ वो एज है जो अब तक चला आ रहा है, यानी ओल्ड एज, मिडिल इंग्लिश पीरियड, आप जो भी आप मान लीजिए, और दूसरी तरफ एक न्यू आइडियाज आ रहे हैं, यहाँ पर ये अब मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ से एक नया सवेरा हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, नई सोच के साथ अब आगे बढ़ेंगे। पहले राजा महाराजाओं का शासन था, देवीय शक्तियों के सिद्धांत पर राजा महाराजा काम करते थे, लेकिन अब लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको जनता को भी शासन सत्ता में भागीदारी देना पड़ेगी। अब जो है यहाँ पर जो इतिहास है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर संसदीय व्यवस्थाओं की शुरुआत होगी। राजा महाराजाओं के जो है उसके केवल वो नाम मात्र के धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। दूसरा, जो राइटिंग, जब लिटरेचर की हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर,
तो लिटरेचर जो एंशिएंट टाइम में लिखा गया है वो ज्यादातर ओरल है, लेकिन एज ऑफ चौसर के बाद औद्योगिक क्रांति होती है स्टूडेंट, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, बहुत नई नई मशीनों का आविष्कार होता है, औद्योगिकरण होता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और कुछ वार होते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती है जिसने क्या है पूरे ब्रिटेन या इंग्लैंड के हिस्ट्री को, पूरे कल्चर को बदल दिया। सो ये पूरा ट्रांजिशन पीरियड है, यानी आप इसको हिंदी में कहें तो एज ऑफ, हिंदी में संक्रमण काल जिसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पर अब मंथन हो रहा है, ठीक है, पूरा पूरा जो है यहाँ पर इस तरीके से मंथन हो रहा है, और एक नया इंग्लैंड, नया ब्रिटेन बनेगा जो आने वाले समय में बहुत सारे विश्व के अनेक देशों पर राज करेगा, उपनिवेश बनाएगा, पूंजीवादी एक बहुत बड़ा देश का निर्माण होने जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एज ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है, यानी ये संक्रमण काल है, नए और पुराने का मिलन काल है। गॉट इट स्टूडेंट? ये सार नो समझ में आया कि नहीं? एग्री और नॉट? I hope you understand it. I hope you understand it. Okay. बीच बीच में कंफर्म करते रहें, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, एवरीथिंग इज फाइन, है ना? रिप्लाई यस। अब हम बात करें एज ऑफ चौसर की, हम बात करें तो स्टूडेंट यहां पर पॉलिटिकल जो कंडीशन है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसमें एज ऑफ चौसर में पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इस हिस्टोरिकल इवेंट्स में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं स्टूडेंट, बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट पार्ट है, आई वुड लाइक टू टेल यू क्या क्या हुआ एज ऑफ चौसर में। चौसर का पूरा नाम आपको मालूम है, जॉफ्री चौसर, ठीक है। एक्चुअली इनका जन्म ही जो है 1342-43 के आसपास माना जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली 1340 से इनकी इनका जो डेथ अपने सॉरी जो जन्म हुआ है तब से मानी गई। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला एज ऑफ चौसर में पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, क्या राजनीतिक सिनारियो क्या था एट दैट टाइम, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ द पर्टिकुलर एज। सो स्टूडेंट आई वुड लाइक टू टेल यू द 100 Years' War, one of the most important events happened in you can say in this particular era, that is the 100 Years' War। आप देखिए यहाँ पर 1337 to 1453, 1337 टू 1337 से 1453 तक। अब हालांकि इसको लगभग 110 हो रहे हैं, लेकिन 100 Years' War कहा जाता है। व्हाट इज दिस, क्या है ये 100 Years' War, ठीक है, लेट अस डिस्कस, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये 100 Years' War पॉलिटिकल कंडीशन, हिस्टोरिकली द एज ऑफ चौसर वाज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट पीरियड्स इन ब्रिटिश हिस्ट्री, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस, उतार चढ़ाव, है ना, का ये पीरियड रहा है। अब यहाँ पर देखिए it witnesses a long succession of conflicts, है ना। ये 100 Years' War किसके बीच में हुआ स्टूडेंट? इंग्लैंड और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, है ना, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, it witnesses a long succession of conflicts between France and England। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में क्या है, एक लंबे सक्सेशन को, उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाइयां चली थी, विच आर कलेक्टिवली नोन एज द 100 Years' War। अब ये 100 साल तक ऐसा नहीं है कि लगातार रोज लड़ा गया, नहीं, बीच बीच में लड़ा गया, है ना। इसमें लगभग 3 शासकों ने इसमें योगदान किया है। अब देखिए यहाँ पर ये कब कब लड़ा गया है और किनके शासनकाल में लड़ा गया है। एक बात क्लियर हुई, दो चीजें, कब हुआ, 1337 से 1453 के बीच में। क्या है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, है ना, अपने अधिकार को जमाने के लिए एक लड़ाई है। दूसरा क्या है कि ये कितने लगभग किन राजाओं के समय लड़ा गया था, ये देखते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, ये देखिए जो एडवर्ड है उनके शासन के दौरान, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, England won glorious victories of the Battle of Kyon in 1346 and Poitiers battle in 1356। These gave her यानी England self confidence and fanned the patriotism of her people। देखिए हर मतलब यहाँ पर इंग्लैंड से मतलब है, ठीक है, इट्स भी लगा सकते हैं।
स्टूडेंट जब इंग्लैंड एडवर्ड थर्ड था तो इंग्लैंड ने क्या है दो महत्वपूर्ण बहुत शानदार विजय हासिल करी थी, बैटल ऑफ क्योन और पोइटियर्स बैटल इन 1356। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का अपना आत्मविश्वास बढ़ा और लोगों में देशभक्ति की भावना जगी। ठीक है, अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मीन्स विक्ट्री, कंक्वेस्ट मीन्स विक्ट्री, बहुत सारी जो इंग्लिश कंक्वेस्ट रही वर अचीव्ड बाय नाइट्स एंड नोबल्स, बट द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज प्लेड बाय द हम्बल बोमेन। ठीक है, नाइट्स और नोबल्स है ना, आप हम्बल बोमेन या कॉमन पीपल आप कह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे जो लड़ाइयां लड़ी गई वो नाइट्स और नोबल्स, जैसे ये आप कह सकते हैं क्लास है लोगों का, है ना, जैसे राजा है सबसे ऊपर शासक वर्ग है, फिर पादरी चर्च के आते हैं, फिर उनके बाद में मिडिल क्लास लोग आते हैं जो नाइट्स हैं, जो बहुत एक है ना, भारत में भी आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था। तो ये इस तरीके से उनके द्वारा जीता गए वार थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बाद में जब इस तरीके से जब वार जीते गए तो जो आर्चर्स है वहां के जो आम लोग भी है सपोर्टेड द अरिस्टोक्रेसी वेल एंड रब्ड सोल्जर विद शोल्डर ऑन द बैटल फील्ड। यानी वहां के जो लोग हैं बहुत ही उन्होंने क्या अरिस्टोक्रेसी यानी वहां की जो शासक वर्ग है उसका साथ दिया और सैनिकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो युद्ध मैदान में लड़े। अब यहां पर इससे क्या हुआ, इट स्ट्रक एट द पावर प्रिविलेज ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। इससे क्या हुआ, जब जनता शासक के पास है, जब जनता का समर्थन है ना, जब वो युद्ध में शासक की मदद कर रहे हैं तो इससे क्या है, शासक का पावर बढ़ गया, शासक की शक्ति में इजाफा हुआ। अब क्या होगा, इट ब्रॉट नो डेमोक्रेसी टू सोसाइटी, इट ब्रॉट, ठीक है, इट ब्रॉट नोट डेमोक्रेसी टू सोसाइटी एंड वास्ड ऑफ द एज ओल्ड बैरियर बिटवीन अपर एंड मिडिल क्लास। इससे क्या हुआ कि जनता और शासक वर्ग के बीच में आपसी सामंजस्य बना और जनता में क्या है, एक सामाजिक डेमोक्रेसी आई, यानी अपर क्लास मिडिल क्लास इनके बीच में जो बैरियर था वो बैरियर टूटे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन द असेंडेंसी ऑफ द मिडिल क्लास इन नेशनल लाइफ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मिडिल क्लास है उनका कहीं ना कहीं नेशनल लाइफ में, राष्ट्रीय जीवन में योगदान मान्य किया जाने लगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा एक और अपन जो विलियम दी कंकरर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब जो आपने जो प्रीवियस ईयर्स में आपको मैंने बताया, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आप देखेंगे नॉर्मन्स ने जो अधिकार कर लिया, बाद में फिर जो हेरोल्ड्स वहां के जो शासक है उसको हरा के वहां की जो जमीन है उसको कब्जा कर लिया गया। तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको लेने के लिए जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई होती रही। आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है कि कब हुआ है ना, किसके बीच में हुआ है। फिर हम बात करें सोशल चेंज में, सोशल चेंज की बात करें स्टूडेंट, तो द ब्लैक, ये बड़ी घटना घटी थी एज ऑफ चौसर में, ब्लैक डेथ, ये हुई थी 1300, आप देखेंगे 1346 टू 1353। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक घटना है, दुर्घटना है, एक विभीषिका है। इट वाज यू नो वेरी, यू कैन से वेरी हार्ट ब्रेकिंग, यू कैन से इंसिडेंट एट द टाइम। एंड द पीजेंट्स रिवॉल्व, दोनों ही घटना, एंड द पीजेंट्स रिवॉल्व व्हेन इट वाज अकर्ड इन 1381, इट अकर्ड इन 1381, गॉट इट। तो देखिए पहला द ब्लैक डेथ है और उसके बाद में द पीजेंट्स रिवॉल्व। पीजेंट्स रिवॉल्व में आप देखेंगे 1381 में, अब यहां देखेंगे चौसर's एज वाज एन एज ऑफ डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट। देखिए चौसर की एज में क्या है, डिसकंटेंट और अनरेस्ट, मतलब मैंने कहा उथल पुथल मची हुई है, अनरेस्ट है ना, बहुत ज्यादा अशांति है, ये सब चल रहा है, ब्लैक डेथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो क्या हुआ, द 100 ईयर्स वार हुआ, है ना, नो डाउट मेड इंग्लैंड अ यूनाइटेड नेशन। 100 ईयर्स वार की वजह से क्या हुआ, शासक जनता सब है ना एक नेशन के रूप में आपस में आने लगे। नो डाउट मेड इंग्लैंड अ यूनाइटेड नेशन एंड अ कॉलोनियल पावर, और है ना इंग्लैंड को एक कॉलोनियल पावर के रूप में विकसित किया। कॉलोनियल पावर का मतलब है कि अब ये इंग्लैंड दूसरे देशों पर भी राज करना शुरू करता है, जैसा भारत में भी क्या है 1599 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आते हैं। But it also imposed unheard of hardship upon the people, अनहर्ड ऑफ हार्डशिप अपॉन द पीपल। लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों को दूसरी तरफ कुछ न कुछ ऐसी नई, देखिए कुछ नया हो रहा है तो उनकी नई समस्याएं भी आएगी। क्या है कि
The prolonged conflict resulted is an increased burden for the people and peasantry groaned under the heels of crushing taxation. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जब राजा 100 ईयर वार, यानी आप सोचिए लगातार युद्ध में सम्मिलित है, लगातार फ्रांस के साथ में लड़ाई में जा रहा है, नए नए काम कर रहा है, नए नए दूसरे देशों में जाके अपने शासन को अपने क्या है देश का विस्तार कर रहा है, तो होगा क्या स्टूडेंट, इसके लिए पैसा चाहिए, ज्यादा मिलिट्री चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए, तो होगा क्या, वो पैसा आएगा कहां से, वो धन आएगा कहां से, युद्ध लड़ने के कहां से आएगा धन। ठीक है, यस वी विल डिस्कस। ठीक है, यस। तो आप यहां पर आप देखेंगे है ना, हम पीजेंट्स रिवॉल्व और ब्लैक डेथ दोनों साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो पीजेंट रिवॉल्व में क्या होता है कि ये जो टैक्सेशन वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, तो बाद में क्या है यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर आता है, ग्रूंड यानी वो जो है ना, अंडर द हिल्स ऑफ क्रशिंग टैक्सेशन, कराहने लग जाते हैं वो, बहुत ज्यादा जो है टैक्सेशन से क्या है दयनीय स्थिति हो जाती है किनकी, किसानों की। अब यहाँ पर जो है जब हम बात करें, द मेटर्स वर मेड वर्स बाय द ग्रेट प्लेग नोन एज द ब्लैक डेथ, यानी ये जो ब्लैक डेथ की हम बात करें, ये प्लेग एक बीमारी थी स्टूडेंट, ब्लैक स्पॉट हो जाते थे, इसका टाइम था 1346 से 1353 में, और विच स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड व्हेन चौसर वाज ओनली 9 इयर्स ओल्ड, ये केवल चौसर 9 साल के थे तभी ये घटना घटी थी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है स्टूडेंट। और इससे क्या हुआ, इट डिसाइमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड, इट इज एस्टिमेटेड दैट about half of the people died within no time, या 1/3 भी आप कह सकते हैं, लेकिन आधे से मतलब 1/3 से भी ज्यादा, लगभग आधे लोग क्या है इस बीमारी से पूरे इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है क्या है मृत्यु को पा गई स्टूडेंट। सो एक बहुत बड़ी दुर्घटना, मतलब ब्लैक स्पॉट जिसको हुआ 4 से 5 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी दुर्घटना जिसमें पूरी जनमानस का जो है नाश होते चले जा रहा था, ये बहुत बड़ी घटना थी स्टूडेंट, आप देखेंगे। ठीक है, लेबर, अब क्या होगा स्टूडेंट, इससे क्या होगा, लेट मी टेल यू, लेट मी नो स्टूडेंट, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, अब लोग ही नहीं बचेंगे, मजदूरी कौन करेगा, काम कौन करेगा, जो नए नए उन्होंने काम शुरू किए हैं कौन करेगा। अब यहाँ पर देखिए, लेबर वाज स्कार्स, देयर वाज नो डिमांड एंड प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फेल रैपिडली। क्या होगा, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कोई डिमांड नहीं है, मांग नहीं है ना, और इससे क्या होगा, जो प्राइसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, यानी जो कृषि संबंधी जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस क्या हो गए, कम होने लगे, बहुत ज्यादा कम होने लगे। गॉट स्टूडेंट, द प्राइसेस ऑफ लेबर रोज। अब क्या हो गया भाई, जब श्रमिक कम होंगे, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होंगे, भाई पहले एक की कोई काम के लिए बुला रहा है, कोई लेबर वर्क करने के लिए बुला रहा है, 10 लोग उपस्थित हो जाते हैं, आज 10 की जगह एक व्यक्ति उपस्थित हो रहा है। पहले 10 लोग जो है 100 रुपए में मान ले प्रतिदिन काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आज एक व्यक्ति कह रहा है, वो भी भाव खा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा पे करना, तो जो लेबर है, जो मजदूरी है, वो ज्यादा बढ़ गई। एंड द प्राइस ऑफ ब्रेड फेल। ठीक है, एफर्ट्स वर मेड टू कंट्रोल, है ना। अब यहां देखिए, price of bread fell, efforts were made to control wages by legislation। अब देखिए यहाँ पर कानून बनाए जाने लगे। ठीक है ना। अब वेज यानी जो मजदूरी है जो दिया जाता है, अर्नर्स ट्राई टू इवेड लेजिस्लेशन बाय माइग्रेटिंग टू डिस्टेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए, अर्नर्स ट्राई टू इवेड लेजिस्लेशन बाय माइग्रेटिंग टू डिस्टेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो क्या है ना, जो देश के कॉर्नर्स पे जाने लगे, कौन, जो अपने क्या बोलते हैं, जो मजदूर वर्ग है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि द रिजल्ट वाज इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता और लॉलेसनेस। ठीक है, मतलब जो कानून बनाए जा रहे कोई नहीं मान रहा है, और द डिसकंटेंट ऑफ द पीपल वाज यूनिवर्सल। अब लोग क्या हैं, डिसकंटेंट ऑफ द पीपल वाज यूनिवर्सल, मतलब आप कह सकते हैं भाई, जब अचानक से मान ले किसी देश में 100 करोड़ लोग हैं, 100 में से 50, 100 करोड़ तो सॉरी ज्यादा है, किसी देश में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से 50 लाख लोगों की डेथ अचानक हो गई, 50 बचे हैं, तो क्या करेंगे, अनरेस्ट होगा, डिसकंटेंट होगा, अनियमितता आएगी उसमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हाइल पीपल वर स्टार्विंग एंड वेलोविंग, जब लोग इस तरीके से संघर्ष में हैं, है ना, बहुत, the people were starving and wallowing in
डेप्लोरेबल माइजरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कंडीशन में है ना, बहुत बुरी स्थिति है, लोग बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, अब देखिए, वर लीडिंग लाइफ ऑफ जाइटी एंड लग्जरी। देखिए, ठीक है, या ऑफ कोर्स पूनम जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लाइक कोरोना, लाइक कोरोना, ठीक है। पर कोरोना ने हमें एहसास किया, कराया, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि प्रकृति पर किसी का हक नहीं है, हक नहीं है, अधिकार नहीं। आप देख सकते हैं जो जिस कोरोना को, जिस वायरस को हम आंखों से नहीं देख सकते, इनविजिबल, वी कैन नॉट सी, है ना, वी कैन नॉट विजुअलाइज द कोरोना वायरस थ्रू द आईज, है ना, उस कोरोना ने धमाल मचा दिया। सोच सकते हैं स्टूडेंट, एक कोरोना जो आंखों से नहीं देखा जा सकता वायरस, उसने दुनिया में, है ना, तबाही ला दी। और बड़े बड़े जो धुलंधर थे, हम ये है, हम वो मसीहा है, हम वो कहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। तो आपसे कह सकते हैं स्टूडेंट, जो नेचर वो अलग चलती है, ठीक है। इसलिए निडर रहना चाहिए और अपने आप को भी निडर रखना चाहिए। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे द किंग एंड हिज, एक तरफ जब ब्लैक डेथ हो रही है, पीसेंट वार हो रहा है, दो घटनाएं हो रही। भाई किसानों के ऊपर युद्ध के कारण टैक्सेशन लादा जा रहा है, किसान परेशान है, प्रोडक्ट के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें प्राइस कम हो चुके हैं, डिमांड नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक डेथ है या प्लेग ऑफ जो बीमारी आई है, उसके कारण के आधे से अधिक लोगों की जो है डेथ हो चुकी है, तो बड़ी दुर्घटनाएं हुई। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट आप देखिए क्या लिखा है कि द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, यानी जो राजा है और उसके जो कोर्टियर्स हैं, जो दरबारी है, वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ जाइटी एंड लग्जरी। वो क्या है, एक शानो शौकत वाली लग्जरी लाइफ को लीड कर रहे हैं। लोगों को गुस्सा आएगा या नहीं, यस और नो, विल दे बी एंग्री और नॉट, पीपल विल बी एंग्री और नॉट, यस और नो। अब यहां पर क्या हो रहा है, द एक्स्ट्रा वेजेंस एंड करप्शन ऑफ द किंग, है ना, देखिए एक्स्ट्रा वेजेंस जो अति खर्चा कर रहे हैं वो, और करप्शन ऑफ द किंग एंड हिज कोर्ट वर फुली एक्सप्लेन्ड बाय द वार टाइलर जैक स्ट्रा, John and Ball, under whose leadership the people rose in open revolt against the king and his tyranny। देखिए, ये फिर नेतृत्व करता है कौन, वार, है ना, वार टाइलर, बहुत फेमस स्टूडेंट वार टाइलर, जैक स्ट्रा और जॉन एंड बाल, ये वो उस समय के नेतृत्व करता है जिन्होंने राजा महाराजाओं की जो खर्चीली आदत है, करप्शन है, उसको उजागर किया, और जिनके नेतृत्व में जनता ने क्या है, राजा के विरुद्ध और उसकी जो पावर सत्ता है, टायरेनी के विरुद्ध क्या है, रिवोल्ट किया, आंदोलन कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं द पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 में हम बात करें तो बस्ट लाइक वोल्केनो, है ना, एंड शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। देखिए, शुक, हिला दिया, शेक शुक शुक, है ना, शेक हैंड बोलते हैं ना अपन, शेक हैंड, तो उसी का शेक शुक शुक। तो जो पीजेंट रिवॉल्ट है उसमें एक वोल्केनो की तरह है, एक तूफान की तरह, एक आंधी की तरह आता है ये, ठीक है ना। और जो है आप देख सकते हैं कि इसने पूरी जो सामाजिक इंग्लिश सोसाइटी, उसके फाउंडेशन को, उसके आधार को हिला दिया स्टूडेंट, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो, माय वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो, टेल मी, कंफर्म मी। एंड आप यहां पर देख सकते हैं, यू कैन सी द राइज ऑफ मॉडर्न स्पिरिट, द डीके ऑफ फ्यूडलिज्म। देखिए, डीके, फॉल, है ना, और राइज ऑफ मॉडर्न स्पिरिट। ये फ्यूडलिज्म की हमने बात करी थी, एज आई टोल्ड यू, इन मिडिल इंग्लिश पीरियड व्हेन नॉर्मन कन्क्वेस्ट वाज अकॉर्डिंग आफ्टर 1066, जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ तो उसके बाद फ्यूडलिज्म भी एक नया परिवर्तन था, जिसमें राजा ने डिक्लेयर किया रहा था कि जो द होल लैंड वाज माइन, यानी पूरी जमीन मेरी है, ये राजा ने डिक्लेयर किया था। व्हाट इट, तो ये अब क्या हो रहा है एज ऑफ चौसर में, अब मॉडर्न स्पिरिट, आधुनिक स्पिरिट का उदय होता है और फ्यूडलिज्म, है ना, का डिक्रीज होता है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट, एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो, वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके, चलिए, अब हम यहां पर बात करें राइज ऑफ मॉडर्न स्पिरिट। पीजेंट रिवॉल्ट डिड मच टू वीकन, देखिए यहां पर पीजेंट
one thing let me tell you student, if you are not capable, if you are having understanding problem by reading, so please read the content slowly. Read the content slowly, definitely you will understand. It is not difficult to understand English. Peasant revolt did much to weaken मतलब कमजोर करना, the feudal system, and to give self confidence to the people. The student, the revolt which occurred in this particular 1389 81, स्टूडेंट इसने क्या है, फ्यूडल सिस्टम को कमजोर किया और लोगों में एक आत्मविश्वास को जगाया. एग्रीकल्चर नो लॉन्गर रिमेन्ड प्रॉफिटेबल. अब एग्रीकल्चर से लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने लगा. एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जो लैंड है, जो जमीन है, भूमि है जहां पर कृषि की जा रही है, उससे लोगों को वहां फायदा ही नहीं है. अब वो राजा की रहे ना रहे, लोगों की रहे अपनी रहे ना रहे, उससे फर्क नहीं है. तो अब क्या है, यहाँ पर एंड एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम का सामंतवादी. क्योंकि क्या एक किसान जो है वो मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा है, उसका जो है वो सामंत, एक जो हायरार्की बनी हुई है ना. एक किसान मेहनत करने वाला फिर अपने जो अपना मालिक ओनर है उसको देगा, ओनर फिर अपने ऊपर वाले को देगा, फिर वो राजा को देगा, इस तरीके से. तो ये नॉट प्रॉफिटेबल हो गया. एग्रीकल्चर नो लॉन्गर रिमेन नॉट प्रॉफिट, यू कैन से प्रॉफिटेबल. अब यहां से क्या है, एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम होता है. अब यहां बात करें हम स्टूडेंट, तो दिस रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द करेज and good judgment of the boy King Richard II exerted a lasting influence on the temper of the lower classes. देखिए, this revolt was suppressed by the courage and good judgment of the boy King Richard II. ठीक है, किंग रिचर्ड सेकंड के दौर में भी ये रिवॉल्ट हुआ. अब इसने थोड़ा सा कुछ निर्णय लिया है, कुछ प्रभावशाली निर्णय लिए हैं. इसमें क्या हुआ कि पीपल वर असर्टिंग देयर राइट टू फ्री थॉट, है ना. रिचर्ड सेकंड जो देखिए, एडवर्ड थर्ड, फिर किंग रिचर्ड सेकंड. तो इस समय हाँ देखिए, इसको क्या है, करेज एंड गुड जजमेंट ऑफ द बॉय किंग रिचर्ड सेकंड. देखिए, ऑफ द बॉय क्यों कहा जा रहा है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी छोटा है और इनके नाम से कुछ और दूसरे लोग शासन कर रहे हैं. ठीक है. अब यस, चलिए, अब यहां पर पीपल वर असर्टिंग देयर राइट टू फ्री थॉट. अब लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट, है ना. लोग जो है किंग रिचर्ड सेकंड से आग्रह कर रहे हैं, हालांकि ये बच्चा है. विचार ठीक डिमांड है कि लोग जो है इनको विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार मिले और इंडिपेंडेंट जजमेंट हो. यानी कि राजा ने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं. ठीक है. अब इन अदर वर्ड्स द डेमोक्रेटिक स्पिरिट वाज ग्रोइंग. अब देखिए यहां पर, यहीं से क्या है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट. आप देखेंगे स्टूडेंट, जो लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है ना, एक लोकतांत्रिक भावना का विकास उदय यहां से होने लगा. यानी लोगों में अब जो राजा जो है, राजा देवी सिद्धांतों के ऊपर काम कर रहा है कि मैंने जो कह दिया उसको कह दिया, मेरे ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद है, ऊपर ईश्वर ने ऐसा कहा है ना. आप लोग नहीं मान रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर शासन खुद करेंगे, हमें अपनी आजादी चाहिए. नाउ अ डिससेटिस्फाइड सर्फ could buy his freedom, है ना, could buy his freedom and pay money rent for his farm. सर्फ यहाँ पर क्या है, खास करके जो वूल वगैरह बहुत यहाँ पर होता था स्टूडेंट, है ना. वूल आप देखेंगे बहुत इंग्लैंड इसके उत्पादन में बहुत अग्रणी रहा है. तो एक तरीके से किसान की एक प्रकृति है. ये क्या है, ये अपने फ्रीडम से क्या है, ये खरीद सकते थे. डिससेटिस्फाइड जो थे, सर कुड बाय हिज फ्रीडम एंड पे मनी रेंट फॉर हिज फार्म. यानी एक स्वतंत्र है वो, अपनी फार्म के लिए क्या है, मनी या जो फार्म है, जो जमीन है, उसको जो है वो रेंट पर भी दे सकते हैं. ये आजादी इनको मिली है. एंड मेनी ऑफ द पीजेंट्स, बहुत सारे जो किसान है, केप्ट शीप. अब किसान भी क्या है, शीप रखने लगे हैं. एंड बाय द सेल ऑफ द शिप्स वूल. शिप है ना, जो वूल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है ना, किसान, ये वूल जो ऊन किससे निकाला जाता है, शिप से. कुड amass coins enough to buy their freedom.
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर जो बातें थी उससे आगे बढ़ गए अब, है ना। अब किसान है वो शिप रखने लगे हैं, है ना, वूल पालने के लिए। अब ये सॉरी वुड निकालने के लिए। अब देखिए, अ सर्फ कुड बिकम a serf could become a free man by establishing a legal residence in town। देखिए, अब सर्प को ये अधिकार मिल गया है कि वो एक फ्री मैन बन सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है, बाय एस्टेब्लिशिंग अ लीगल रेसिडेंस इन अ टाउन। यानी वो टाउन में खुद का लीगल रेसिडेंस बना सकता है, अपना एक तरीके से अपना पहचान आइडेंटिटी के साथ में वो क्या है एस्टेब्लिश कर सकता है, अपना उद्योग एस्टेब्लिश कर सकता है। ये आजादी पहले नहीं थी स्टूडेंट, दिस फ्रीडम वाज नॉट अर्लियर। ओके, सो men who could do better on their own land, men who could do better on their own land than in working for the lord of the manor, purchased their freedom, while others offered themselves wholly for hire। ठीक है, men who could do better, है ना, ऑन देयर ओन लैंड, यानी जिन जो लोग अपने जमीन पर बहुत अच्छा करते हैं, है ना, दे इन वर्किंग फॉर द लॉर्ड ऑफ द मैनर, लॉर्ड ऑफ द मैनर जो थे उनके लिए काम करते हुए, परचेज देयर फ्रीडम, वो फ्रीडम खरीद सकते हैं, वाइल यानी फ्रीडम खरीद सकते हैं, यानी स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना जो भी बिजनेस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वाइल अदर्स ऑफर्ड देमसेल्फ होली फॉर हायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दस द पीजेंट्स रिवॉल्ट सक्सीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द इट्स पर्पस, द सर्ब्स नो लॉन्गर रिमेन स्लेव्स। यानी जो सर्ब्स है, फिर कह रहा हूं, जो ऊन वगैरह बनाते हैं, जो वूल है, यानी एक तरीके से किसी के अंडर में काम कर रहे थे, एक प्रकार के किसान हैं ये पीजेंट्स के ऊपर। तो ये अब क्या ही गुलामी, अब बहुत ज्यादा गुलाम नहीं रहे, एंड ट्राई टू देयर बैरन्स एंड टू देयर स्ट्रीट्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दिस रिजल्टेड इन ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द फ्यूडल। इसे धीरे धीरे अगेन वापस देखेंगे, जो फ्यूडल सिस्टम है वो कमजोर होता गया, और द अथॉरिटी ऑफ द किंग was weakened while that of the parliament grew up। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने क्या कहा कि इससे क्या है, जो फ्यूडल सिस्टम डिक्रीज होता है, और राजा की जो अथॉरिटी है, राजा की जो सर्वसत्ता है, सुप्रीमेसी है, वो डिक्रीज होता है, और जो पार्लियामेंट ग्रू अपेस का मतलब है जो संसद है, यानी अब क्या है, जनप्रतिनिधित्व वाला शासन है, जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, वो ग्रो करने लगता है। क्लियर है? बात करें हम आगे, अब यहां पर इस दौर में कंडीशन ऑफ वुमेन क्या रहा। तो कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करें, देखिए वुमेन की कंडीशन की बात करें तो वुमेन वर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन। अभी तक क्या माना गया कि जो महिलाएं हैं, उस दौर में बात करें, महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों से कमजोर है, पुरुषों के पीछे, ऐसा माना जाता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द लोअर सोसाइटी की ज्यादातर जो महिलाएं हैं वर इलिटरेट, और यही कारण रहा है कि ना women were considered inferior to men, and that is the reason that most of the lower caste women they were illiterate। वो क्या है, पढ़ी लिखी नहीं थी। women of aristocratic families, जो महिलाएं बड़े अरिस्टोक्रेटिक फैमिली यानी जो अपर क्लास की जो महिलाएं हैं, enjoyed wealth and power only by marriage। ठीक है, तो वो बड़ी जो अपर क्लास की महिलाएं हैं शादी के बाद में इन सब पावर का उपयोग कर सकती थी, लेकिन लोअर सोसाइटी की महिलाएं अशिक्षित थी, उनका अधिकार नहीं थे। यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड मैरिज वर आल्सो इन वर्च अमंग रिच एंड वेल्दी पर्संस। ठीक है, चाइल्ड मैरिज आप देख सकते हैं रिच और वेल्दी पर्संस में। फिर डॉरी वाज इन प्रैक्टिस, है ना, डॉरी भी प्रैक्टिस में था, यानी दहेज प्रथा इन प्रैक्टिस, एंड गर्ल्स वर ऑफन सोल्ड। देखिए बहुत बुरी बात है स्टूडेंट, देखिए डॉरी भी प्रचलित था, और जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनको बेचा जाता था स्टूडेंट। दास प्रथा भारत में भी रही है स्टूडेंट। आप वो दौर भी सोचिए, यहाँ पर मैं थोड़ी एक नई बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट। उस दौर की कल्पना करें जब दास प्रथा के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों को, या जो निचले तबके के गरीब लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनको बेचा जाता था स्टूडेंट, उनकी मंडियां लगती थी। सोचो क्या बीतती होगी उनके ऊपर, परिवार, बच्चे, नाते, कोई रिश्ते, कोई ये नहीं है। और जो बेचने वाले लोग हैं, जो अपने आप को अपर कहते हैं, सभ्य कहते हैं, उनकी क्या सोच, शोषण करने वाले लोगों की कैसी सोच रही होगी, कितनी निर्दयता से उन्होंने उनको बेचा होगा, आप सोच सकते हैं स्टूडेंट।
ये वो दौर भी था और आज हम उस दौर में हैं जब कहीं ना कहीं अब हम एक समृद्धि की ओर बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ये केवल इंग्लैंड की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है स्टूडेंट। तो आज हम उस दौर में हैं, इस 21वीं सदी में हम लोग जन्मे हैं, तो हमें जीवन में कुछ बेहतर अटेन करना है, कुछ बेहतर है, बड़े से बड़े मकसद करना है और एक ऐसी जिंदगी जीना है कि लोगों के कुछ काम आ जाए। यही से है ना। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर चेंजेस आल्सो केम इन मेंस ड्रेसेस। आप देखिए यहाँ पर एक और चेंज आता है, खास करके जो पुरुष है उनके ड्रेसेस में चेंज आता है। दे बिकेम फॉन्ड ऑफ ज्वेल्स, है ना, एंड प्रिफर्ड ज्वेल्स इन देयर आउटफिट्स। अब क्या है, कहीं ना कहीं मनुष्य भी क्या है, आभूषण प्रिय होने लगा है ना, और वो अपने आउटफिट्स में इसका इस्तेमाल करने लगा है। Both men and women of fashion wore enormous head dresses of fantastic scale, है ना, like horns, turbans, है ना। आप देखेंगे इस तरीके से एंड टॉवर्स, ये आप इंग्लैंड में अभी भी पुरानी फिल्मों में या इस तरीके से देखते हैं आपने, है ना, ये पहनते हैं। ठीक है, वहां के रिलेशन स्टेटस की बात कर रहे हैं। अब रिलीजियस कंडीशन की हम बात करें कि उस समय कैसा रहा। करप्शन इन द चर्च, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर when we talk about religious condition of the particular age, so there was a lot of corruption in the church. The Lollard movement, अब ये Lollard movement क्या है आइए देखते हैं स्टूडेंट। In the age of Chaucer, the church became a place of corruption, profligacy and materialism. चौसर के एज में क्या हुआ है, जो चर्च है वो करप्शन के और मटेरियलिस्टिक शानो शौकत के, या यूं कहें कि ऐशो आराम के एक पॉइंट बन गए थे, है ना। यानी जिस चर्च के ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे, अब वो चर्च क्या है, करप्शन का एक माध्यम बन गए थे। लोगों को ये बात खटक रही थी। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन कौन है, जो पादरी है ना, जो चर्च मैन है उनको क्लर्जीमैन कहा जा रहा है। Instead of devoting their time and energy to religious meditation, यानी जो पादरी हैं, जो वहां के सेंट है चर्च में काम करने वाले, वो जो है अपनी एनर्जी, अपने समय को क्या कहें हम, समय को, एनर्जी को क्या है, धार्मिक मेडिटेशन में, धार्मिक उन्नति में लगाने के बजाय क्या कर रहे थे, वो had given themselves up to wine, wealth and women। देखिए, वाइन, वेल्थ एंड वुमेन, इन तीन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम को लगा रहे थे स्टूडेंट। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है। आप लोगों से वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो मैंने ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, है ना, मैंने थोड़ा सा इसको ब्लैंक रखा है। जो फोटो आ रही है ना, वहां पे कुछ बीच में एक दो मैसेज आए थे कि वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो अब नाउ इट्स क्लियर, ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, यस आर नो? गॉट इट? आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोंक, देखिए यहाँ पर, द मोंक, द फ्रायर, द पार्डनर एंड द समनर। देखो स्टूडेंट, ये जॉफरी चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें सारे कैरेक्टर आएंगे, है ना, फ्रायर, पार्टनर, और ये वही सब वहां चर्च के ही अलग अलग कैटेगरी है, नाम है। हैड गिवन अप देयर रिलीज, देखिए, मोंक, द फ्रायर, द पार्टनर और द समनर क्या करा, हैड गिवन अप देयर रिलीजियस लाइफ ऑफ पीटी एंड हॉलीनेस एंड ब्रॉट इंफॉर्मेशन इनटू द चर्च। क्लियर है? ठीक है, इन्होंने क्या है, रिलीजियस लाइफ को इन्होंने छोड़ दिया, है ना, गिव अप कर दिया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या स्थिति बनती चले जा रही है। एंड ब्रॉट इंफॉर्मेशन इनटू द चर्च। The dissatisfaction of the people with this state of affairs was intense, and there were a number of spirited souls who could not but raise their voices against this state of affairs। ये जो मामले हो रहे थे, चर्च जिस तरीके से काम कर रहा था, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों की जो असंतुष्टि वो बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और कहीं नंबर्स में लोग क्या है, ये अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे थे अपनी, और साथ ही क्या है, अपनी आवाज को भी उठा रहे थे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में। अब यहां पर क्या आ रहा है, एक और कैरेक्टर आ रहा है इसमें, जॉन वाइक्लिफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड पोएट्स लाइक लैंगलैंड एंड गोवर। स्टूडेंट याद रखना, ये बड़े कैरेक्टर हैं,
जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। रिफॉर्मेशन का मतलब जो परिवर्तन का समर्थन करता है, रिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन पहले हुआ, फिर इसका फिर से रिफॉर्मेशन, रिनोवेशन। गॉट इज स्टूडेंट? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जा रहा है जॉन वाइक्लिफ को, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा, लेंगलैंड, गोवर, जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया, फ्रीली डिनाउंस्ड द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च एंड थ्रू देयर टीचिंग sought टू रिवाइव द रियल क्रिश्चियनिटी। विरोध करना शुरू कर दिया जो करप्शन चर्च में हो रहा है, और अपने विचारों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या करा, एक रियल क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करना उन्होंने शुरू कर दिया, फिर से उसको एक रियल क्रिश्चियनिटी की तरफ, यानी कि नहीं ये जो कर रहे गलत है, वास्तव में रियल आप देखेंगे, आप फिर से बाइबल लिखी जाएगी। पहले बाइबल चर्च तक सीमित थी, पहले बाइबल के बहुत ज्यादा पब्लिकेशन नहीं होता था, आम लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, है ना, अब जो है जनता खुद बाइबल के सिद्धांतों को पढ़ेगी इस तरीके से। वाइक्लिप्स, अब ये जो देखिए वाइक्लिप्स फॉलोवर जो है वो क्या कहलाए, लोलार्ड्स कहलाए, और वेंट अबाउट द कंट्री प्रीचिंग हिज आइडियल। प्रीचिंग का मतलब अपने प्रवचन देना। वाइक्लिफ ने इस बात को, चर्च की जो बात है, चर्च में जो करप्शन है, और साथ ही न्यू क्रिश्चियनिटी को से संबंधित अपने विचारों को बढ़ाया। वाइक्लिफ्स के जैसे हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है, उन्होंने अपने विचारों को जिस तरीके से प्रवचन के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे, वैसे ही वहां पर भी वाइक्लिफ्स ने जो धार्मिक आडंबर थे, वहां पर करप्शन था चर्च में, उसको दूर करने के लिए जो विचार प्रवचन दिए, उनके फॉलोअर ने प्रीचिंग हिज आइडियल्स, यानी उनके फॉलोअर्स ने देश में अलग अलग जाकर के प्रवचन दिए। अब यहां देखेंगे दैट वाज कॉल्ड लोलार्ड मूवमेंट, लीलार्ड नहीं है यहाँ पर ये स्टूडेंट, आप देखेंगे यहाँ पर लोलार्ड मूवमेंट, है ना, इसी को लोलार्ड मूवमेंट कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है व्हाट इज लोलार्ड मूवमेंट, व्हाट इज लोलार्ड, ठीक है, रिमेंबर द फॉलोअर्स ऑफ लोलार्ड नोन एज लोलार्ड्स, ठीक है, एंड इट शुड द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द पोप। अब ये देखिए, ये वाइक्लिफ्स के थॉट्स ने, न्यू क्रिश्चियनिटी के थॉट्स ने क्या करा, जो पोप की पावर है, जो पोप की सत्ता है, उसको क्या करा, हिला दिया। एंड दे आल्सो लॉस्ट देयर पावर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द चर्च। अब देखिए यहाँ पर ये पॉप ने क्या है, एक और शक्ति खो दी, क्या शक्ति खो दी, आल्सो लॉस्ट देयर पावर टू इलेक्ट देयर मेंबर्स ऑफ द चर्च। यानी पॉप को ये शक्ति होती थी कि वो चर्च के सदस्यों की नियुक्ति करे, अब क्या है, वो पावर भी उन्होंने खो दिया, पोप के द्वारा नियुक्त सदस्यों को मान्य नहीं किया जाएगा, अब जनता खुद चुनेगी। गॉट इट? अब ये रिलीजियस स्थिति है स्टूडेंट। अब इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जो पीरियड है ये ट्रेड और कॉमर्स का है। जैसा कि आपको बताया है कि एग्रीकल्चर, है ना, नाउ इट इज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, एंड द सर्फ एंड द पीसेंट्स दे स्टार्टेड न्यू, दे स्टार्टेड कीपिंग शिप्स फॉर वूल, ठीक है, तो उन्होंने शिप्स रखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द एज ऑफ चॉसर विटनेस्ड, ये है ना, विटनेस्ड का मतलब ये गवाह है, द राइज ऑफ रिच एंड प्रॉस्पेरस मर्चेंट एंड ट्रेड्समैन। इसी एज में, इसी एज ऑफ चौसर में क्या है, बहुत अमीर जो और समृद्ध मर्चेंट से व्यापारी है ना, मर्चेंट्स और ट्रेड्समैन है, एक तरीके से दोनों के लिए व्यापारी आप कह सकते हैं, उनके उदय को देखा, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आए। दे कैरीड आउट स्प्लेंडिड बिजनेस, है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया विद यूरोप, with European countries and were laying the foundation of England's industrial prosperity, ठीक है ना, they carried out splendid business with European countries and were laying the foundation of England industrial prosperity। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के साथ बिजनेस को बढ़ाया और इंग्लैंड की औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला रखी। ये वो पीरियड है, मैंने कहा ना कि औद्योगिक जो क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति जो हुई है उसके आधारशिला रखी उसने। और इसलिए मैं क्लास में भी बोलता हूँ, सॉरी, है ना, इसलिए मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ स्टूडेंट, सॉरी वन सेकेंड, लेट मी,
ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल ट्रेडर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, small traders and handicrafts men grew into power and began to behave like eldermen and well-to-do citizens। अब धीरे धीरे जो छोटे छोटे व्यापारी भी है, जो हाथों से जो हथकरघा, अपने क्या बोलते हैं, हथकरघा उद्योग है, हाथ से बनाने वाले जो क्राफ्टमैन है, वो भी अब धीरे धीरे क्या है, पावर में आने लगे हैं और एक एल्डरमैन की तरह बिहेव करने लगे हैं। व्हाट इज, मतलब ये सब आजादी नहीं थी, लेकिन अब आजादी आने लगी एज ऑफ चौसर में। The importance and self-consciousness of the smaller tradesmen and handicraftsmen increased with that of the great merchants। धीरे धीरे यही स्मॉल मर्चेंट्स है, यही जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं, ये क्या है, ग्रेट मर्चेंट्स में भी परिवर्तित होते गए। आप सोच सकते हैं बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। Thus, this new and prosperous merchant, ये नए और जो समृद्धशाली मर्चेंट है, व्यापारी है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, आप देखेंगे merchant class weakened feudal system as foreign trade and power were passed into its hands from the feudal lords। ठीक है। अब यहाँ पर जो है फ्यूडल सिस्टम को फिर वीकन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास में क्या है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड है, वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब है जो जमीन के मालिक है, वो अब क्या है, व्यापारियों के ऊपर डिपेंड हो रहे। कैसे भाई, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनके वहां पर कच्चा माल पे बना, क्या बोलते हैं, जो खेती में या लैंड में जो भी फसल उत्पादन और प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो भी अब इंडस्ट्रियल के माध्यम से जो नया उत्पादन हो रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्या है, व्यापारी को किसी अन्य देश में जाके बेचना है, वो व्यापारी देगा, व्यापारी बेचेगा। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूडल सिस्टम वीक होता गया है। Thus the age of Chaucer is singularly modern age। एक तरीके से ये मॉडर्न एज का आप स्टार्टिंग कह सकते हैं। इट इज एन एज ऑफ इंटेंस सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटी, है ना। तो ये लिटरेचर भी यहाँ पे लिखा जाना लगेगा, बहुत बड़ा ये इस एज में बहुत परिवर्तन, इसलिए इसको बोलते हैं ना, ये क्या है, एक तरीके ट्रांजिशन पीरियड है स्टूडेंट। ये क्या है, ये संक्रमण काल है, दिस इज द संक्रमण काल। व्हाट इट इज द मीटिंग ग्राउंड, अब ये लास्ट है स्टूडेंट, इट इज द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द मिडाइवल एंड मॉडर्न। ये मिडाइवल यानी जो मध्यकाल है और मॉडर्न एज का मीटिंग ग्राउंड है। द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का मीटिंग ग्राउंड है। द ओल्ड एंड द रिन्यू, जो पुराना और नए का मीटिंग ग्राउंड है। एंड द रिलीजियस एंड द सेक्युलर, और एक जो धार्मिक कट्टरता वाली बात थी, और एक सेक्युलर है, यानी जो सबको लेकर के चलने वाले, एक धर्म की नई परिभाषा को लेकर आते हैं, उसका एक मीटिंग ग्राउंड है। एंड दैट इज व्हाई ये जो पूरा एज है, हम देखें, इट इज रिमार्केबल एज, एन एज इन विच मेन लाइक चौसरियन मेक देयर मार्क। यानी ये वो एज है जब एक जॉफ्री चौसर जैसे लोग क्या है, अपनी पहचान बनाते हैं। सोचो, एक उस समय जो पूरा पीरियड है, पूरी हिस्ट्री है, एक राजा के नाम से जानी जाती थी। अब क्या है कि लिटरेचर में एक ऐसा व्यक्तित्व आता है, जॉफ्री चौसर, जिसके नाम से एज जाने लगी है। यानी एक व्यक्ति की अपनी पहचान, यानी अपने काबिलियत के दम पर वो अपनी पहचान बनाने लगा है। ये वो दौर है, ये वो परिवर्तनकारी दौर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये सारनो, ठीक है। तो आई होप इट इज स्टूडेंट, may I continue? I think ठीक है। So tomorrow we will have a conversation on the next in the characteristics of the particular age. And one thing, let me tell you student, there is a one option that to increase the class time for half an hour, and I will try to take the class 1.5 hour every day, okay? From Monday I will try to take for half an hour. And one thing, let me ask you a question, student, if we change the time, uh, 7:30 or 7 o'clock, I think, can we start our class at 7 o'clock in the morning? Yeah, in the evening, yes or no? 7 o'clock, everyone is able to attend the class, yes or no? Let me know. It will be okay. 7 to 8:30, and I will take the class 7 to 8:30, है ना?
So I will try, put your message in chat box, put your message in chat box. Is that clear? So you can go through the topics. Poonam ji, why no? Means, will you be able to attend the class at 7 o'clock or not, or 7:30? Actually, if I take 1.5 hour class, so it will, because I have to take till 9:30. So 7:30 to 9 o'clock, or 7 o'clock to 8:30. That will be the right time, I think. Why? Yes, tell me. Okay, है ना? So tomorrow will be at the same time we will meet. At the same time we will meet, है ना? You can do earlier, है ना? Poonam ji, you can do this earlier also, है ना? And because our time is precious, है ना? Our time is so precious. So we will try to manage. It's not, I think, 7 o'clock. It's not. You can say more inconvenient. It, I think, everyone. It is convenient for everyone. Okay. Okay, from Monday we will have, you know, tomorrow we will decide what will be the time. Tomorrow we will decide. I will tell you what will be the time, new time. ठीक है, थोड़ा सा समय चेंज करेंगे और I will take class for 1.5 hours. Okay, ठीक है. Okay, student. So one thing, let me tell you, if you might like my class, and you can share, and you can share the feedback, I hope. And this is the last, this is the class एज ऑफ चौसर. स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, यहाँ से ये ट्रांजिशन पीरियड है, और यहाँ से जो बेसिक हमारा बन रहा है, यही बेसिक पूरे आने वाले इंग्लिश लिटरेचर में काम आएगा, मैं आपको बता दूं. And that's why I am teaching, I am trying to give you more maximum ideas regarding this particular era. ठीक है? No, no. Please, one thing, let me tell you, student, please join live class. Do not depend upon recorded class. मैं फिर कह रहा हूँ, है ना? You will not have such a feelings at this time. You are live with me, so you are having extra attachment. है ना? Don't depend upon recorded class. Attend, you can say, attend live classes. ठीक है? Try to attend live classes. You don't know the importance of live classes. In live class we are live, है ना? We are having live, and we are having live attachment. Okay, so in recorded class you will not enjoy. Okay, I think you should attend. Thank you, and thank you very much. We will discuss tomorrow at the same time, है ना? And then we will have a new timetable also. Okay, ठीक है.